Hello everyone. Today we will discuss second part of income and employment equilibrium. In this chapter we will discuss equilibrium under aggregate demand and aggregate supply approach and equilibrium under planned saving and planned investment. Both the terms we already studied in my previous videos. Let's start from the first approach, income and employment equilibrium under aggregate demand aggregate supply approach. An economy is in equilibrium where aggregate demand is equal to aggregate supply. Let's take formula of aggregate demand: consumption plus investment equal to consumption plus saving. C cut from C, then I is equal to S, investment equal to saving. Here we take a schedule of aggregate demand and aggregate supply, income, consumption, investment, saving, aggregate demand, aggregate supply. Where income is 0, consumption is minimum. We already read about this point. It is known as a autonomous consumption. When income increase, consumption also increase, but income increase greater than consumption. Here y is 0, consumption is 50. Then y increase 0 to 100, 200, 300, 400. Consumption also increase 50, 150, 200, 250. Minimum investment is 50, autonomous investment. When y minus c, calculate saving. C plus I aggregate demand, C plus S is equal to aggregate supply. When income is 200, aggregate demand is equal to aggregate supply and planned saving equal to planned investment is a point of equilibrium. Here point of equilibrium. Before the point of equilibrium, aggregate demand is greater than aggregate supply, and below the equilibrium point, aggregate demand is less than aggregate supply. Both are not a equilibrium point, because in first aggregate demand is more than aggregate supply, and third, after the equilibrium point, aggregate supply is more than aggregate demand. Let's check with the help of a curve. Here is a curve. Aggregate supply is originate from the 0. Y-axis shows aggregate demand and aggregate supply, and x-axis shows aggregate national income and employment. Point E, where aggregate demand is equal to aggregate supply. It is a point of equilibrium. Point E is equilibrium due to aggregate demand equal to aggregate supply. Next, point A and B. This point and this point. Not a equilibrium. Point A is not equilibrium because aggregate demand is greater than aggregate supply. Means जितना भी वो प्रोड्यूस करता है उतना ही वो सेल हो जाता है. मीन्स फिर भी मार्केट अंदर डिमांड क्या है, ज़्यादा है. इट्स मीन कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए नेक्स्ट ईयर ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है. ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी. देन अगेन रीच इन टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई. Point A is not equilibrium because aggregate demand is greater than aggregate supply. To reach equilibrium, firms need to more investment in next year to reach into the equilibrium. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल स्टॉक लेस देन क्या है, डिज़ायर स्टॉक है. इसलिए हमें क्या है, जो एक्चुअल स्टॉक को राइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. इन्वेस्टमेंट होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एंड ए पॉइंट कम्स अगेन इक्विलिब्रियम. तो वहाँ पर क्या इक्विलिब्रियम आ जाएगा.
इसी तरह बी इज आल्सो नॉट इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पर एक्चुअल स्टॉक इज ग्रेटर देन डिजायर स्टॉक। जितना स्टॉक उसको आइडिया था कि अनसोल्ड होगा, उससे कई गुना ज़्यादा स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है। अगर स्टॉक अनसोल्ड है तो नेक्स्ट ईयर उस स्टॉक को पहले ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, फर्म्स क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देगी। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस क्यों करेगी? क्योंकि उसने पहले अनसोल्ड स्टॉक को क्या ख़त्म करना है, जिस कारण से क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होगी तो नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी एंड रीच इनटू द इक्विलिब्रियम। दैट्स इज ए aggregate demand, aggregate supply approach is very very important questions. Many times it's come in the form of 6 marks question. Next approach, income and employment equilibrium under saving and investment approach. Both are same thing, बट यहाँ पर क्या हमने सेविंग को प्राइमरी बनाना है, अदर थिंग को सेकेंडरी बनाना है। यहाँ पर क्या है? एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। वाई सी सेम हम पीछे लिया, पीछे की सेम वही फिगर है, सिर्फ उन्हें क्या कर दिया है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिखा दिया गया है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू। लाइक हम यहाँ देखते हैं प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वाई माइनस सी इक्वल टू सेविंग, मीन इन्वेस्टमेंट इज 50-50, तो मीन्स प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। अब यहाँ पर प्लान्ड ही क्यों बोला गया? एक एक्चुअल सेविंग होती है और एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है, वो ऑलवेज ही बराबर रहेंगी बुक कीपिंग एंट्री के अंदर, क्योंकि वाई माइनस सी अगर हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो ऑलवेज ही इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो उसके बराबर होने या ना होने से इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्ड सेविंग के बराबर नहीं होगी तब तक एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि प्लान करने वाला, सेविंग करने वाला कोई और पर्सन है और प्लान इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई और पर्सन है। मान लो कि मैं सेविंग कर रहा हूँ, किसके लिए? अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो मैंने अपनी सेविंग से फ्यूचर भी सिक्योर करना है और मैंने इंटरेस्ट भी क्या अर्न करना है, तो मैं अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा दूँगा। बैंक क्या करेगा? उसको पैसे को उस व्यक्ति को उधार दे देगा जिस व्यक्ति की प्लानिंग क्या है? प्रोडक्शन करने की है, इन्वेस्टमेंट करने की है। तो प्लानिंग करने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई और पर्सन है और सेविंग करने वाला कोई और पर्सन है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों का अमाउंट बराबर नहीं होगा, तब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। मीन्स कोई भी पैसा नेशनल इनकम का वेस्ट नहीं पड़ा है, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है, तभी क्या इक्विलिब्रियम आएगा। तो प्लान्ड सेविंग इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कर्व हियर, नेशनल इनकम एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई गई हैं। ये जो पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है जी, एंड जो ये चीज़ है वो सेविंग का। क्योंकि सेविंग का हमें पीछे पड़ा हुआ है, सेविंग जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ई थोड़ा सा हटा हुआ है, ये ई पॉइंट, यहाँ पर क्या है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है? बी है, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या है यहाँ का? ए और बी जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं है। पीछे सेम चीज़ दी हुई है जो हमने पीछे दी थी, उसी को एक्सप्लेनेशन देनी है, एज इट एक्सप्लेनेशन रहेगी। दो डायग्राम है, एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से, दूसरा क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से। यहाँ ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या क्यों है? क्योंकि प्लान्ड सेविंग इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। ये इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट होगी तो एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होगी। तो प्रोड्यूसर को एग्रीगेट डिमांड को पूरा करने के लिए नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब दोबारा फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
और अगर हम पॉइंट इसकी बात इधर बात करते हैं, इस साइड में क्या है, सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। मार्केट में क्या चीज़ है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है। जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसका मतलब अनसोल्ड स्टॉक रहेगा मार्केट के अंदर। उस अनसोल्ड स्टॉक को ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी तो दोबारा फिर क्या है, नेशनल इनकम कम हो जाएगी, रीच इनटू द इक्विलिब्रियम। ये 2 प्रोसेस हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डायरेक्टली टॉक टू मी।